Good morning, children. In the last class, we studied about what is a function, then what is one, what is onto, and so on. Today, we'll solve simple sums based on functions. So, very first, from the definition, check if the following relations are function. Look at the first diagram. In the set A, all elements are paired. That is the first condition is satisfied. Now, do you see anywhere 1x is having two values of y? No. So here it is satisfying all the conditions of definition of function. So it is a function. Okay. The first one is a function. Second one, again you see set A, all elements are paired. Now, here the problem is this element R is paired with two elements of B. That is, one element of set A is paired with two elements of set B. That is, it is one to many relation, and one to many relation is not a function. Okay, this is not a function because R is having two values. One is B, other is D. Okay. Next. Now, again here they have given certain relation. You have to check whether it is function or not. Now there are two ways. सिर्फ check करना है. Is the first value repeating somewhere? If the first value is repeating, it is no more a function. Or you will draw the diagram and check whether it is one to many or not. Also have to check set A के सारे elements paired है कि नहीं है. So see, 1 is there, 3 है, 2 है, 4 है. But if you see, 2 की वैल्यू -1 भी है, 2 की वैल्यू 2 भी है. So it is not a function. आया समझ में? Yes. Next, 1, 2, 3, 4 चारों वैल्यूज है और डिफरेंट है. It is a function. ठीक है. C में देखो 1 है, 4 है, 2 है, 3 is missing. Set A का 3 is unpaired. So it is not a function. Okay, it is not a function. Are you getting it? Last wala 1, 2, 3, 4 all values are having same y, that is 1. So it is a function क्योंकि सारे A के elements है and no one value is having two same values. Okay, understood? These are 1 mark sums. Next, f of m दिया है m square minus 3m plus 1. I want to find f of 0. So if you observe just what we are supposed to do, we are supposed to replace m by 0. Can you see? F of m tha, now I have to find f of 0. So I'll just replace it by 0. So 0 square. So I'll get the answer as 1. So f of 0 kitna hai mera? 1. Understood? Correct? Yeah. Similarly, I'll go for D. Now B and C you will try. F of x plus 1. तो क्या करना है? I just have to replace m by x plus 1. ठीक है? Now let's simplify this. The moment you simplify, you will get. Now add or subtract the like terms. This will be a final answer. Okay. Similarly, give a try to f part. First find f of 2 plus h. Then find f of 2. Subtract and divide your answer. Okay. I'll show you how to find f of 2 plus h. I'll not do the calculations. I'll just substitute the values and tell you. You have to solve. And f of 2 कितना आएगा? 4 minus 6 plus 1. That is minus 1. आया समझ में? इन दोनों को subtract करो. h से divide करो. You will get the answer. Okay. Next. Find x if g of x is 0. अभी क्या दिया है? They have given that g of x is 0. But in A, what is the value of g of x? Correct. 5x minus 6 upon 7 equal to 0. That is 5x minus 6 equal to 0. So I get x as 6 by 5. कुछ नहीं करना है, सिर्फ g of x को 0 पुट करना है. Similarly C1,
6x square plus x minus 2 equal to 0 है. Now I got a quadratic equation, so I'll factorize it. Multiplying I want minus 12, adding I want 1. 6x square minus 3x. Now I can solve this quadratic. Everybody knows how to solve this quadratic, so I'll go a little bit fast. So either I'll get 2x minus 1 equal to 0 or 3x plus 2 equal to 0. So x या तो half आएगा और x will be minus 2 by 3. Understood? Is it clear? These are very simple and straightforward sums. Okay. Now let's understand different types of functions और हर function का domain क्या है, range क्या है. As I told you, domain means what are the possible values of x जिसके लिए function defined है, and range means what are the possible values of y. समझ में आया? So let us talk about the first function, that is constant function. Constant function means f of x equal to k, where k is any constant. मतलब k कुछ भी हो सकता है. If I try to draw the graph of this, I'll get a line parallel to x axis. मतलब x कुछ भी रहेगा, मेरा y का वैल्यू सेम रहेगा. Okay, let x be anything, my value of y will remain constant. Now let x be anything का मतलब क्या है? X can be anything means x can be real number. I can take x as positive, negative, zero, fraction, irrational numbers, rational numbers. So my domain is real numbers. But by default, whatever may be the value of x, मेरा y का value k ही आएगा. So my range is k. क्या आएगा मेरा range? K. Understood? Now next is I'll draw the graph over here. Small graph I'll draw. कुछ ऐसा आएगा. If this is the value of k, तो y equal to k ऐसा आएगा. Okay. Next, f of x equal to x. In short, I can write f of x equal to x as y equal to x. If I draw the graph of y equal to x, it will give a straight line. Correct? The moment I say straight line, every x के लिए possible है graph ये. So again my x is real, and जो x है वही मेरा y होगा, because I am saying y equal to x. So again मेरा y भी क्या है? Real. That is my range क्या है? Real. Understood? Clear? Now f of x equal to x square. You know that you can find square of any number. Correct? You can find square of any real number. So मेरा domain आएगा real number. Now square of every real number is by default positive. मतलब मेरा आंसर y का नेगेटिव कभी नहीं आएगा. Hence my range is 0, infinity. 0 का स्क्वायर ब्रैकेट क्यों है? Because I can get the value of x square as 0. Are you getting it? समझ में आ रहा डिफरेंस डोमेन और रेंज का? मेरा आंसर सिर्फ पॉजिटिव आएगा, सो 0, इंफिनिटी, और आई कैन राइट r प्लस. ठीक है. नेक्स्ट है क्यूब फंक्शन. f of x इक्वल टू एक्स क्यूब. आई कैन फाइंड क्यूब ऑफ एवरी रियल नंबर, एंड मेरा क्यूब पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शन कुछ भी आ सकता है. सो माय domain and range both will be real number. Understood? Domain and range both will be real number. Linear function अभी मैंने बताया. Linear function का मतलब है straight line, and since it is straight line, I can find y for every real number, and I'll get answer as every real number. Since it is a straight line, मेरा दोनों आंसर real number आएगा. ठीक है. Now quadratic function. एक सिंपल ग्राफ बनाता हूं क्वाड्रेटिक का. लगभग ऐसा आएगा. इफ यू सी, वो इस पॉइंट से सिमेट्रिक है. करेक्ट? जो यहां से वैल्यू जाएगी वही लेफ्ट साइड में वैल्यू जाएगी. इट मींस मेरा डोमेन तो कुछ भी हो सकता है. आई कैन फाइंड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर एवरी रियल नंबर, बट मेरा रेंज मतलब मेरा y का मिनिमम वैल्यू ये आएगा, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी आएगा. आई डोंट नो ये ग्राफ कहां जा रहा है. सो मेरा रेंज ये तो इन्फिनिटी आएगा. When I talk about this point, this is nothing but 4ac minus b square upon 4a. आया समझ में? इसका जब हम सम सॉल्व करेंगे डोमेन रेंज का, I'll explain you ये वैल्यू कैसे आया. या what is the way to find this value in easiest way. ठीक है. So याद रखो, क्वाड्रेटिक का डोमेन रियल नंबर आएगा, रेंज का ये फॉर्मूला याद रखो. ठीक है. Then cubic polynomial, I can find
सेम एज क्वाड्रेटिक, रियल नंबर रेंज डोमेन आएगा, एंड रेंज कुछ भी हो सकता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इट इज नॉट एट ऑल सिमेट्रिक एनीवेयर, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अगर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को फंक्शन मानना है, द बेसिक थिंग इज आई शुड टॉक ओनली अबाउट square root as positive. The second thing, square root is only defined when x is positive. जब जब x पॉजिटिव होगा तभी स्क्वायर रूट पॉसिबल है, अगर x नेगेटिव हुआ स्क्वायर रूट रियल नहीं आएगा. Hence the domain is restricted to positive numbers only. And the moment I say square root x is function, I cannot take negative values, वरना one too many हो जाएगा. That's why I'm taking range also as positive values only. क्या ले रहा हूं मैं range? Only positive values. Now क्यूब रूट फंक्शन, मैं क्यूब रूट पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, इरेशनल, रैशनल सबका निकाल सकता हूँ. डोमेन रियल, रेंज रियल. व्हाई रियल? बिकॉज आई कैन फाइंड क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव फंक्शन ऑल्सो. ठीक है, इज इट क्लियर? नेक्स्ट, नाउ सम स्पेशल फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, दैट इज f of x equal to modulus of x. Now you know modulus of x मतलब, if I say modulus of 2, मेरा आंसर 2 आएगा. If I say modulus of -3, still the answer will be positive. मतलब मेरा ब्रैकेट में x कुछ भी रहे, इन वर्टिकल लाइंस में x कुछ भी रहे, मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा. क्या आएगा मेरा आंसर? पॉजिटिव. सो व्हाट कैन आई से? मेरा डोमेन क्या आएगा? ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x. फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ x आई कैन फाइंड मॉड्यूलस. बट मेरा रेंज, irrespective what is the value of x, my answer should be always positive. So range आएगा 0 to infinity. इसका ग्राफ बनाओगे तो देखो x पॉजिटिव के लिए वही आंसर आएगा y, तो स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू x वाला. बट x नेगेटिव है तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा. तो ये ग्राफ ऐसा आएगा, मॉड x का ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा आएगा. ठीक है, आया समझ में? नाउ सम प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड. If I say mod x equal to a, अगर mod x equal to a लिखा, this implies that मेरा x या तो प्लस a है या तो माइनस a है. सिंपल एग्जांपल, -3 का भी आंसर 3 आएगा और 3 का आंसर भी 3 आएगा. तो अगर mod के अंदर x है, उसका आंसर a है, तो इन शॉर्ट मेरा x होना चाहिए प्लस माइनस a. क्या होना चाहिए मेरा x? प्लस माइनस a. ठीक है. नाउ नेक्स्ट है मॉड x ग्रेटर देन a. x की मॉड x की वैल्यू a से बड़ी चाहिए. मतलब किसका मॉडुलस निकालोगे कि आंसर a से बड़ा आएगा? एक तो x a से बड़ा होना चाहिए, मतलब x a और इंफिनिटी के बीच में कुछ भी चलेगा, या x माइनस a से छोटा होना चाहिए. बराबर, x क्या होना चाहिए? माइनस a से छोटा. जस्ट सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक. या x क्या होना चाहिए? माइनस a से छोटा, क्योंकि -4 लिया तो -4 का मॉड्यूलस क्या आएगा? 4, एंड 4 3 से बड़ा हो जाएगा, तो ये आएगा a कॉमा इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी कॉमा माइनस a. आया समझ में? मैं टेक एग्जांपल, इफ आई से मॉड x ग्रेटर देन 3, तो मॉड x की वैल्यू 3 से बड़ी कब आएगी? जब x 3 से बड़ा होगा, या x -3 से छोटा. -4 -5 का मॉड्यूलस निकाला, उसका आंसर भी बड़ा आएगा 3 से. सो माइनस इंफिनिटी -3. आया समझ में? सिमिलरली आई कैन राइट मॉड x लेस देन a. तो मॉड x की वैल्यू a से कम चाहिए, मतलब मुझे मॉड x की वैल्यू 3 से कम चाहिए. तो x क्या होना चाहिए? -3 और 3 के बीच में. जब x की वैल्यू 3 से छोटी होगी या x -3 से बड़ा होगा, तभी आंसर 3 से कम आएगा. So this implies answer should be between -a less than x less than a. Understood? Yes? Clear everyone? ये सबसे नया फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. इसको शॉर्टकट में GIF भी बोलते हैं. मैथमेटिकली इसको स्क्वायर ब्रैकेट में x लिखते हैं. क्या लिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में x. क्या करेंगे? विल राइट स्क्वायर ब्रैकेट में x. एग्जांपल लेके समझाता हूं. इफ आई से 3.5 और इफ आई से 3.45, इफ आई से 3.99, 3.10,
अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब है, सबसे पहले बताओ ये 3.5 नंबर जो है कौन से दो इंटीजर्स के बीच में आ रहा है? तो ये 3.5 3 और 4 के बीच में है। डू यू अग्री? 3.5 का इंटीजर वैल्यू लिया, या तो 3 से बड़ा है या 4 से छोटा है, तो इन दोनों नंबर में जो छोटी वैल्यू है वो तुम्हारा आंसर आएगा। क्या आएगा? वो तुम्हारा आंसर। मतलब GIF ऑफ 3.5 आएगा 3, क्योंकि 3 और 4 में डांस कर रहा है वो, और 3 छोटा है। अगेन 3.45 का आंसर भी क्या आएगा? 3, क्योंकि वो दो इंटीजर्स 3 और 4 के बीच में आता है। 3.99 भी 3 और 4 के बीच में आता है, सो आंसर इज 3। 3.10 भी 3 और 4 के बीच में आता है, सो आंसर इज 3। समझ में आया? तो नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर क्यों है? क्योंकि 3.5 का इंटीजर क्या है? 3 है। सबसे बड़ा इंटीजर 3 है ना, 3.5, तो 3 इंटीजर हो गया, बाकी डेसिमल हो गया, तो छोटा इंटीजर क्या है? 3, सो आंसर इज कमिंग आउट टू बी 3। सिमिलरली -2.3 बोला, तो -2.3 कौन से दो इंटीजर के बीच में आएगा? -2 और -3 के बीच में, करेक्ट। छोटा इंटीजर कौन सा है? -3, तो इसका आंसर आएगा -3। आया समझ में? अगेन ध्यान से देखा जाए इसका डोमेन, आई कैन फाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फॉर एवरी रियल नंबर, बट व्हेन आई टॉक अबाउट रेंज, मेरा आंसर हमेशा एक प्रॉपर नंबर आएगा। आंसर क्या आएगा? प्रॉपर नंबर विच इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो रेंज आएगा इंटीजर्स। क्या आएगा? रेंज इंटीजर्स। ठीक है, I'll draw diagram also for you. थोड़ा सा इनकरेक्ट बनेगा बिकॉज if I press it the tab more it goes away, so I'll try my level best. अब देखो, जब जब नंबर 0 और 1 के बीच में होगा, कोई भी नंबर अगर 0 और 1 के बीच में है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, तो मेरा आंसर आएगा 0, क्योंकि वो 0 और 1 के बीच में है और छोटा इंटीजर 0 है। तो ऐसा ग्राफ आएगा। ओके, देन 1 और 2 में रहेगा तो 1 आएगा, तो 2 पे ओपन 1 पे क्लोज। 2 और 3 में रहेगा तो 2 आएगा। ठीक है, ऐसा आप नेगेटिव साइड भी जाओ तो इसे स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। ओके, इज इट क्लियर? एनी डाउट्स क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। इसको बोलते हैं, कर्ली ब्रेसेस में x लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कर्ली ब्रेसेस में x। इसका डेफिनेशन है ओरिजिनल नंबर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब देखो, फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब है मुझे नंबर के डेसिमल पार्ट को रिस्पेक्ट देनी है, नंबर के डेसिमल पार्ट को रिस्पेक्ट देनी है। ठीक है, तो अगर मैं डेफिनेशन अप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा 3.5 माइनस 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, विच बिकम्स 3.5 माइनस 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 3, सो मेरा आंसर आएगा 0.5। ऐसे 2.3 लिया, आप सॉल्व करो, आपको आंसर 0.3 मिलेगा, तो जो डेसिमल पार्ट है वही आपका आंसर आएगा। तो इसका आंसर 1 से बड़ा कभी नहीं होगा और 0 से कम कभी नहीं होगा। नाउ इफ आई टेक नेगेटिव 2.3, कंफ्यूजन है तो डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, -2.3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.3, करो सिंप्लीफाई। -2.3 माइनस इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा -3, तो इसका आंसर आएगा 0.7। आया समझ में? तो अगेन इसका डोमेन आएगा फॉर एवरी रियल नंबर आई कैन फाइंड दिस, बट रेंज, मेरा आंसर डेसिमल पार्ट आ रहा है। डेसिमल पार्ट का मतलब है मेरा आंसर 0 और 1 के बीच में ही आएगा। मेरा आंसर 0 और 1 के बीच में ही आएगा। अंडरस्टूड? क्लियर एवरीवन? ओके, ना जो भी मैंने पढ़ा है उसके बेसिस पे ये सम्स ट्राई करो, नहीं आया तो आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट क्लास। ओके, ये भी ट्राई करो। ठीक है, आई विल स्टार्ट विद दिस सम्स इन द नेक्स्ट क्लास, एंड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सम्स भी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।